Very good morning, students. Welcome to Gnan Manchri Vidyapith Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher, Vatsal Trivedi. So, students, today we are discussed on your biology unit number 2, जिसके अंदर अभी हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा वेदर के रिलेटेड था। स्टॉर्म्स के बारे में हमने देखा था और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि साइक्लोन और टॉर्नेडो फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ओके, विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वाले चैप्टर में साइक्लोन्स किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कॉन्सेप्ट टाइम नंबर हमने देखा था 9 के अंदर। सो अभी हम देखेंगे साइक्लोन्स के बाद। आज हम लोग पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन या एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन वीडियो के अंदर है वो सारे क्वेश्चन आपको फेयर बुक के अंदर लिख के एज अ होमवर्क सेंड करने होंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10, वाई डू हाई स्पीड विंड्स कॉजेस, क्या क्या होता है वो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10 के अंदर, पेज नंबर 49 SB15 के अंदर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डे ऑफ 10। First of all, let's solve NCERT exercise page number 92 and 93 in your NCERT textbook. If you have NCERT textbook, so please open. Otherwise, you do not have. So don't worry, you can directly solve through this video. So let's start it. Which of the following places is unlikely to be affected by the cyclone? ऐसी कौन सी चीज़ है वो अनलाइकली अफेक्टेड होती है बाय साइक्लोन? कौन सा प्लेस है, सॉरी चीज़ नहीं, कौन सी प्लेस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन्नई, सेकंड मैंगलोर, देन अमृतसर एंड पुरी. So here the answer is that Amritsar, because since Amritsar is not along the coast, so it is unlikely to be affected by the cyclone. नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट? दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है? सो फर्स्ट, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड एंड द ओशन. In the summer, the winds from flow the land towards the ocean. A cyclone, if is a strong formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. And the last one, fourth, is the coastline of India is vulnerable to the cyclones. So the correct answer is option number first. In winter, the winds flow from the land to the ocean. So since the land is cooler, then the ocean is formed at the area of high pressure. Thus, winds flow from the land to the ocean. So now I would like to request to you all students that please open SB15 page number 49 concept time number 9 के अंदर. Here there is some experiment 1, 2 and 3. So वो सारी experiment हम देखेंगे. What can you conclude from the observation in the 3 experiments that we have performed? तीनों एक्सपेरिमेंट में से हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो हमको यहाँ पे देखना है. फर्स्ट, बोटल and the paper ball experiment, then paper strip experiment and two balloons experiment. So now let's start the experiment number 1. So each of the experiments shows the decrease in air pressure due to the increased wind speed. जब हम इसके अंदर कोई भी हवा डालते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है विथ अ विंड स्पीड. Air moves in a region of high pressure to the region of a low pressure. So what is the difficult to force of the paper ball into the bottle? ये आप घर पे भी कर सकते हो. अगर ये आप कर रहे हो तो इस तरह से आपके एक फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करना है और नीचे आपके एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, बॉटल एंड पेपर बलून एक्सपेरिमेंट. So where a balloon through a bottle
the wind speed increase and it creates the lower air pressure at the mouth of the bottle, whereas air pressure is higher inside the bottle, which push the pepper ball out. क्या हो रहा है? जब हम उसके अंदर हमारे मुंह से हवा उसके अंदर दाखिल करेंगे, सो एट द हायर प्रेशर वो अंदर से वापस अ, ऊपर की ओर आके बाहर निकलने की कोशिश करेगी. Next, in a paper strip experiment, as the uh, illustrated below, which labels represented the high pressure and the low pressure. ये दोनों में से किस में से हाई प्रेशर होगा और किस में से लो प्रेशर होगा? So, in represented high pressure at and B represented a low air pressure. A के अंदर हाई प्रेशर लगेगा और B के अंदर लो प्रेशर लगेगा. So in the paper strip experiment, what makes the paper strip float in the air? So when we place the strip of paper, our mouth and blow air out the wind speed over the upper surface. The paper strip increase, decreasing the air pressure over the top of the air. So the air pressure below the pipe is then higher in comparison, thus the paper strip gets lifted up. क्या होगा? पेपर स्ट्रिप lifted up होगा. So can you think any other applications of this principle? Yes, the design of an aeroplane's force air up its body, which creates the low pressure and at top. उसकी वजह से ही वो हवा पे तैर सकता है. This the low speed of air at the bottom creates the high pressure and thus aeroplane gets lifted us. Now the next, in the two balloons experiment, why did the balloons comes close to each other when air was balloon between them? दोनों के अंदर आपको ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो. दोनों के अंदर अगर हमने हवा ब्लो करी है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हमको दिखाएंगे, हमको नजर आएंगे. सो व्हाई? So when air blown between the water filled balloons, between two water filled balloons, the increased wind speed is lower at the pressure between the two balloons. हवा का प्रेशर ज्यादा होगा. Okay, the air pressure around the balloon is higher comparison which the push them inwards. What would happen to rooftops of the house during the cyclone? ऐसा क्या होता है जब साइक्लोन हमारे घर के रूफ टॉप के साथ जब कनेक्टेड होता है या उसके साथ जब टकराने वाला होता है, सेट टाइम रूफटॉप के साथ क्या होगा? सो व्हेन हाई स्पीड winds blow over the rooftop or buildings, a low pressure zone is created over the roofs while the pressure of air inside the house is more. क्योंकि उसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से अंदर का प्रेशर लो प्रेशर होगा वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. So as we know that air moves from a region of high pressure region to the lower pressure, क्या करेगा? हाई टू लो प्रेशर के अंदर वो मूव करेगा. So that's why the movement of air pushes the roof. So ये हमने देखा है आज. It is in your concept time number 10 SB 15 page number 49. Okay. So आज हमने जो कुछ भी देखा है वो आपको ध्यान से एक बार रीड करना है
और साथों साथ जो कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्टार्टिंग में हमने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन करा है वो भी आपको आज कंप्लीट करना है. So, in the next day, we are discussed the cyclone does and don'ts. Okay, concept time number 11 वो आपको रीड करके रखना है एज अ होमवर्क. और उसके साथ हम नेक्स्ट डे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 को हम कंप्लीट करके हमारा नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 सोइल. ओके, सो अभी आज आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 11 पेज नंबर 50 वो आपको रीड करना है. देन आज कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10 जो हमने कराया पेज नंबर 49 SB 15 पर वो भी आपको रीड करना है. और जो स्टार्टिंग में जो दो क्वेश्चन हमने कराए वो सारे क्वेश्चन आपको फेयर बुक के अंदर लिख कर वो भी हम एज होमवर्क सेंड करना है. सो अभी भी कोई डाउट्स रह जाता है यहाँ तक समझने में, सो आप कभी भी पूछ सकते हो. यू हैव टू आस्क एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट आज हमने कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10 वाई डू द हाई स्पीड विंड्स कॉजेज द डिस्ट्रक्शन वो हमने आज का किया है. उस वो हमारे पेज नंबर SB 15 के ऊपर अवेलेबल है. ओके, सो उसके साथ हम नेक्स्ट हमने क्या कौन सा पेज देखा था? नेक्स्ट पेज SB 16. हियर SB 16 के ऊपर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 11 साइक्लोन्स के बारे में, ड्यूरिंग साइक्लोन्स, आफ्टर द साइक्लोन्स और बिफोर द साइक्लोन्स हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके बारे में हम देखने वाले हैं. ओके, सो अभी हम आज यहाँ तक रखेंगे. नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. सो अभी हम आज यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट टाइम कोई भी डाउट हो तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे और स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट टाइम नंबर जो 11 अभी आपके स्क्रीन पर है वो आपको एक बार रीड करना है और होमवर्क के अंदर जो भी क्वेश्चनिंग है वो भी आपको सेंड करना है लिख कर. सो अभी यहाँ तक रखेंगे. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच. स्टे होम. To be continued next video. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.